हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं मुझे और आपको क्या फुल स्लाइड नज़र आ रही है पूरी स्क्रीन पे? एक सेकंड मुझे बता दें माइक ऑन करके। Yes, और sir. इसमें अच्छा ठीक है, गुड। So today we are going to start chapter 5, the fundamental molecular genetic mechanism. The name of this chapter is, and we are going to study this chapter from the molecular cell biology that is written by the Lordish Harvey and Lordish et al. Okay, so the first slide is about the four basic molecular genetic processes. So this is the one cell. This is one cell is shown somewhere here, and this is the light blue color is the nucleus, and there are some junctions in between the nuclear membrane. These are actually the nuclear pore. You can see nuclear pore. These are, and here is the DNA. You can see the DNA is somewhere here. So DNA is going to do the two processes. DNA is actually the replicated inside the nucleus. First of all, actually, DNA is replicated. The other mechanism that is performed by the DNA is the transcription, the formation of mRNA. To make the DNA, the basic building blocks are the DNTPs. And for the making of the mRNA, the basic building block is the ribonucleotide triphosphates. And once the RNA is made, you can see this is the RNA. This is the green cap is the 5' capping of the mRNA, and the red region is the exonic region, and the blue one is the intronic region. That is something that is happening inside the nucleus. After the mRNA is synthesized, that is actually the pre-mRNA synthesized, that is including both the exons and the introns. Then it is processed. Then it is processed. How it is processed? Like 5' capping, 3' polyadenylation, and the intron splicing occurs. These three things happens to make the messenger RNA, mRNA, or the mature RNA. After the mRNA is fully functional, then it is transported out of the nucleus and comes into the cytoplasm. The proteins, as we already talked, that need the post-translational modification. I wrote on the board PTM that day. P, T, and M. That is the PTM. Post-translation modification. They are usually synthesized on the rough endoplasmic reticulum, and the proteins that are hydrophilic and that reside actually inside the cell and does not need the rigorous modification are synthesized on the ribosomes that are freely present in the cytoplasm. Okay, so what is shown here somewhere? So this is the nucleolus, the lighter in color, shown by lighter in color. Nucleolus is responsible for the synthesis of the ribosomal RNA. Nucleolus definitely is present inside the nucleus. And you can see these are the amino acids. These amino acids are joined to the transfer RNA, and these transfer RNA containing the specific amino acids are finally utilized to make the protein from the mature mRNA or messenger RNA. Okay, and the DNA viruses. So this is the example about the DNA viruses that actually introduce their genetic material inside the nucleus, and then the DNA is converted into the RNA, and then the proteins are synthesized in the cytoplasm. But the RNA viruses directly introduce their genetic material into the cytoplasm, and their proteins are synthesized, and the new viruses are made, and those new viruses then burst the cells and invade the other cells. So this is some little example about the DNA viruses and the RNA viruses is given along with the replication and the transcription, and then the messenger and then the mRNA processing,
and then the translation. बच्चों आवाज आ रही है आपको? Yes, एक मिनट sir. बता। ओके, शुक्रिया। अच्छा, अब ये कि डीएनए से हमारा आरएनए बनाने का प्रोसेस, अभी हमने इसका ओवरव्यू लिया है। अभी जो पिछली स्लाइड में हमने किया है, ये ओवरव्यू लिया है हमने। हम इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, कैसे रेप्लिकेशन होती है और कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे डिटेल में। हम सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए इज ऑलवेज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए इज ऑलवेज रन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम इज कंटेनिंग द फॉस्फेट ग्रुप। 5 प्राइम पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। और 3 प्राइम पे क्या होता है? 3 प्राइम पे हमेशा एक OH ग्रुप होता है। 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है। जितनी भी एनसीबीआई में डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जीन्स के सीक्वेंसेस, दे आर ऑलवेज रेड, दे आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। ठीक है, इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम को उन्होंने कुछ यूं भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे CAG, this is the 5 prime end containing the phosphate group and this is the 3 prime end containing the OH group. This is read and written from 5 prime to 3 prime. अगर कहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये डीएनए का ये जो है ना डीएनए का स्टैंड दिखाया गया है। डीएनए का स्टैंड कैसे पता चला हमें दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, यहाँ पे OH नहीं है बल्कि H है। हम आगे मूव करते हैं। डीएनए हमने जीन की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए इज फाउंड इन द डबल हेलिक्स। तो डीएनए डबल हेलिक्स जो है ना, वो कुछ यूं पाया जाता है कि ये एक एक इसका स्टैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है। एक स्टैंड जो ना रेड से शो किया गया है, ये रेड दिख रहे हैं आप, और दूसरा स्टैंड जो ना ब्लू से शो किया गया है। दूसरा स्टैंड ब्लू से शो किया गया, और इन बिटवीन जो लाइन नजर आ रही है आपको, दीज आर द नाइट्रोजन स्पेसीज, दे आर मेकिंग द डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड टू मेंटेन, टू कीप द बोथ द स्टैंड्स टुगेदर, दैट कीप बोथ द स्टैंड्स टुगेदर। यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। ये मैं आपके एम्पलीफाई भी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दो नाइट्रोजनस बेसिस दैट आर एक्चुअली पार्ट ऑफ one of the two strands of the DNA, they are making the double hydrogen bond somewhere here. Double hydrogen bond is always present between the A and the T. A and the T. A देख रहे हैं लिखा छोटा सा बीच में, और T लिखा देख रहे हैं, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और C और G के दरमियान हमेशा जो है ना ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं कहना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कहना है। ठीक है, तो ये डीएनए की डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है। हम आगे मूव कर रहे हैं। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है ना, डीएनए की जो वो दो फॉर्म्स पाई जाती है। डीएनए दो फॉर्म्स में पाया जाता है। डीएनए कौन? डीएनए डबल हेलिक्स दो फॉर्म में पाया जाता है। एक डीएनए बी कहलाता है और एक डीएनए ए कहलाता है। एक डीएनए ए कहलाता है। तो यहाँ पे हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, जो डीएनए ए है, ये देखें इसकी जो जब ये टर्न लेता है, तो इसके ये जो स्पेस है यहाँ जहाँ से हमें नजर आ रही है डीएनए की, ये नाइट्रोजन स्पीशीज नजर आ रही है। जब ये टर्न लेता है, डबल स्टैंड जब टर्न लेता है, ठीक है, जब ये टर्न लेता है डीएनए डबल हेलिक्स, तो यहाँ पे नजर आ रही हैं। और यहाँ पे भी हमें ना डीएनए ए फॉर्म में भी नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो डीएनए बी फॉर्म में ये जो नाइट्रोजन स्पीशीज है ना, ये मोर विजिबल हैं, मोर विजिबल हैं। ये थोड़ा सा डीएनए जो बी फॉर्म होती है, दिस इज मोर एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, यानी कि बी फॉर्म कुछ यूं होगी, मैंने एक बिल्कुल रफ पिक्चर बनाई है, और डीएनए ये बी फॉर्म मैंने बनाई है। ठीक है, बी भी लिखूंगा अभी मैं यहाँ पे। लेकिन अगर इसके मुकाबले में ए मैंने फौरी तौर पे बनानी ना, द ए फॉर्म इज लेस एक्सटेंडेड। ठीक है, इसको मैंने लेस एक्सटेंडेड बना दिया है। ये मैंने सिंगल स्टैंड बनाया है, ये डबल डीएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। डीएनए बी फॉर्म इज मोर रिलैक्स्ड, और डीएनए बी फॉर्म जो है ना, मोस्ट यूकेरियोट में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए बी फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए की जो कन्फर्मेशन है वो बी फॉर्म पाई जाती है। इसमें जनाब एक बेस से दूसरे बेस के दरमियान 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, और एक पूरा टर्न लेने के लिए वो कहते हैं 10 या 5 बेसिस लगती हैं, 10 या 5 बेसिस लगती हैं। ठीक है, अच्छा, और जबकि अच्छा ठीक है, और जो ए फॉर्म है उसमें 11 बेसिस लगती हैं, यानी कि वो कम खुला हुआ होता है, ये ज्यादा खुला हुआ होता है, इसलिए थोड़े बेसिस में उतना ही फासला तय कर लेता है। कितना फासला? एक टर्न का, एक टर्न का, एक टर्न का। ठीक है, एक टर्न कहां से कहां हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको कहां से कहां हो सकता है। एक टर्न यहां से रेड राइट से नजर आए, रेड से लेके ये दोबारा रेड तक आने तक ना एक टर्न हम कह सकते हैं। ठीक है,
एक रेड से रेड तक एक एच पे अगर हम देखें। अच्छा, जो जो प्रोटीन्स हैं, टाटा प्रोटीन्स हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली। टाटा बॉक्सेस होते हैं जो कि जीन के अपस्ट्रीम पाए जाते हैं। टाटा बॉक्सेस होते हैं जो कि जीन के अपस्ट्रीम पाए जाते हैं। दी टाटा प्रोटीन्स एक्चुअली कैन बाइंड एंड कैन यू कैन सी ट्विस्ट द डीएनए। टाटा प्रोटीन्स कैन ट्विस्ट द डीएनए, यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए कैन अंडरगो रिवर्सिबल स्ट्रैंड सेपरेशन। जो स्ट्रैंड की सेपरेशन है ना, डीएनए डबल हेलिक्स पाया है, डीएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है। तो एक दो स्ट्रैंड इसके होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो सकते हैं और रिवर्सिबली अलग हो सकते हैं, यानी कि दोबारा उनको ज्वाइन किया जा सकता है, दोबारा वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में ज्वाइन किए जा सकते हैं। तो पहले हम इसकी बी फिगर देख लेते हैं। मुझे नहीं पता मैं बी क्यों पहले बताने जा रहा हूँ, फिर हम ए को भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम देखें कि जीसी कंटेंट जो है ना, जीसी कंटेंट है, जितने डीएनए में ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। मेल्टिंग टेम्परेचर किसको कहते हैं? ये डीएनए डबल हेलिक्स है जी, ये क्रीपी स्ट्रैंड पाए जाते हैं, एक क्रीपी स्ट्रैंड है, इनके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ साफ सुथरी बन जाए। लेकिन जब ये टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक यहाँ पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर है उसमें 20% जीसी कंटेंट है, और जिनमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड उन उन डीएनए फ्रेगमेंट्स का मेल्टिंग टेम्परेचर है जिनका जीसी कंटेंट ऑलमोस्ट 40% है। तो आमतौर पे जो हम प्राइमर्स डिजाइन करते हैं 40 टू 60% जीसी कंटेंट के दरमियान डिजाइन करते हैं, 40 टू 60% जीसी कंटेंट के दरमियान तस्वर करते हैं, काउंट करते हैं। और जो जीनोमिक डीएनए या कोई भी प्लाज्मिड का डीएनए जिसको मेल्ट करने के लिए हम टेम्परेचर आमतौर पे यूज करते हैं, हम 95 यूज करते हैं, ठीक है। हम वो 95 यूज करते हैं। वो कितना टेम्परेचर यूज करते हैं? हम वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं अब? यस हेलो, सर। ओके, शुक्रिया। तो हम फुल स्क्रीन मोड पे चले जाते हैं। हम यहाँ कहीं पे थे, पिछली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, ये वाली, हाँ यहाँ पे थे हम। तो यूजुअली वी यूज अ 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग ऑफ डीएनए। अगर तो जीनोमिक डीएनए होगा तो फिर हम 5 मिनट देंगे ये टाइम, तो पूरा का पूरा जीनोमिक डीएनए चाहे आपका ह्यूमन का हो, कोट का हो, इसका मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डीएनए छोटा है, लाइक
5 KB है, 6 KB है, 6000 बेस पे, 7000 बेस पे है, तो बात कर 1 मिनट देना भी काफी होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मेल्ट करके सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर हम उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आना चाहते हैं, डीएनए मेल्ट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, ओरिजिनल शेप में लाना चाहते हैं, दोबारा डबल स्ट्रैंडेड बनाना चाहते हैं, तो हम उसको हीट करने के बाद स्लोली कूल डाउन करेंगे, तो वो डबल स्ट्रैंडेड में अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ज्वाइन कर लेगा। स्लोली उसको कूल डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो डीएनए की जो लैम्डा मैक्स है ना, वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कोई मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन देता है, उसको लैम्डा मैक्स कहा जाता है। लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स, लैम्डा लिखा जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे एम मैक्स, एम ए, सॉरी, लैम्डा मैक्स, एम ए एक्स, ठीक है, सबसे मैंने लैम्डा मैक्स लिखा है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये है कि 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम देते हैं। जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए गिव्स समवट हायर एब्जॉर्बेंस, बट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना, उनकी एब्जॉर्बेंस यूं यूं बढ़ते बढ़ते एकदम से बहुत इंक्रीज हो जाती है, जो कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा मैक्स से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर इट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड और द डबल स्ट्रैंडेड। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई है ना। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है इस स्लाइड की टाइटल में, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एमआरएनए। हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, डीएनए इज ऑलवेज रेड, डीएनए को हमेशा पढ़ा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नजर आ रहा है जी? फुल स्लाइड है ना आपके पास बच्चों? एक बच्चा मुझसे मुझे बताता जाए साथ साथ। जी जी सर जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना, हाँ, हमारे पास एक ना कौन है जी, ये डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, टेम्पलेट के आगे टेम्पलेट स्टैंडर्ड, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड, हाँ, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड उसको कहा जाता है जिससे आप दूसरी कॉपीज तैयार करते हैं। जब फोटोकॉपी मशीन के अंदर जो आप रखते हैं ना, एक पेज फोटोकॉपी करने के लिए, उसको टेम्पलेट हम कह सकते हैं। उस जैसी फोटोकॉपी मशीन दूसरी कॉपी निकाल देती है। तो यहाँ पे इस टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट लेके हमने, इसको सैंपल लेके हमने दूसरा स्टैंड तैयार करना है, दूसरा स्टैंड तैयार करना है। तो 5 टू 3 प्राइम ये है। और जो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा होता है, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो कि नेचुरल फॉर्म में है, वो एक स्ट्रैंड 5 टू 3 प्राइम रन कर रहा होता है, दूसरा भी 5 टू 3 प्राइम रन कर रहा होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो जो यहाँ पे होने जा रही है, क्या होने जा रही है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होने जा रही है। ट्रांसक्रिप्शन का मैंने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि यहाँ टी की जगह यू है, टी की जगह यू है एक, ठीक है। मैंने यहाँ से अंदाजा लगाया कि ट्रांसक्रिप्शन होने जा रही है, ठीक है। तो उसने इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे लिया। ये टेम्पलेट में क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड में ये थाइमीन है, ये एडेनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ये एडेनिन है, ये थाइमीन है। तो other strand will keep its 5 prime 5 prime 5 prime somewhere here against the 3 prime of the template strand। और क्या होगा, पॉलीमरेज बेसिकली इसके OH पे बैठेगा, इसके OH पे बैठेगा, और नेक्स्ट जो है ना, न्यूक्लियोटाइड उसको ज्वाइन कर देगा, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। फिर दोबारा OH बैठेगा, फिर आगे यहाँ पे OH था ना, बेसिकली OH था, OH ने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया, और दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस आपस में मिल गई। इस तरीके से कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग होता है। और यहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि ये बेसिकली राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आती है, और उसका OH जो है ना, अटैक इस फॉस्फेट पे करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, दो जो है ना पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाती है, ठीक है, डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में ये रिलीज हो जाती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का इनक्लोज मैकेनिज्म दिखाया गया है। हम दोबारा देखते हैं कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमारी रिसर्च में भी काम आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक साइट होती है जिसको ना जीरो साइट कहा जाता है, ठीक है, जीरो साइट कहा जाता है। ये इसको +1 साइट कह लें, +1, हाँ, इसको +1 साइट कहा जाता है। यहाँ से जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +10 +20 +30, ये जो प्लस हैं, ये बेसिकली जीन के बेसिस हैं। जीन की बेस 1, जीन की बेस 10 20 30, इस तरीके से जीन की बेस है। जीन द कोडिंग the coding sequence is run from +1 to +++ something, जितना उसका जी साइज है, जितना उसका क्या है, साइज है। डीएनए इज रन इन दिस डायरेक्शन, डीएनए इज रन इन दिस डायरेक्शन।
और मैं आपको बताता चलूँ जितने भी डीएनए के रिजर्वायर हैं, सीक्वेंसेस के रिजर्वायर हैं, जीन्स के सीक्वेंस हैं, ह्यूमन का जीनोम है, जितने भी हैं, वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रिटर्न हैं वेबसाइट्स पे। जितने भी सीक्वेंसेस आप रिट्रीव करेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होंगे, यानी कि बेसिकली वो टॉप स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया होगा तमाम वेबसाइट पे। किसी भी जीन का जहां सीक्वेंस दिया हुआ है, वहां पे किस स्ट्रैंड का दिया हुआ है, वहां पे टॉप स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया है। टॉप स्ट्रैंड में भी बात की +1 की, +1 ये जीन है, चूंकि +1 का मतलब है यहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एक किस्म की उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, और ऊपर देखें -10 -20 -30 है। तो दीज आर द प्रोमोटर रीजन, दीज आर द प्रोमोटर रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, अपस्ट्रीम ऑफ द जीन। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो टॉप स्ट्रैंड को उन्होंने दोबारा यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, जो 5 टू 3 प्राइम है। ठीक है। इन्होंने टॉप स्ट्रैंड को बनाया यहाँ पे 5 टू 3 प्राइम में, ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आपको, और बॉटम स्टैंड को इन्होंने यहाँ पे भी बनाया है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है, बट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन टू द टॉप स्ट्रैंड, इन एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन टू द टॉप स्ट्रैंड। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो बेसिकली वो टॉप स्ट्रैंड को टेम्पलेट नहीं लेता, इसलिए टॉप स्ट्रैंड को उन्होंने नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा है। वो बॉटम स्टैंड को टेम्पलेट लेता है, वो बॉटम स्टैंड को टेम्पलेट लेता है, बॉटम स्टैंड को टेम्पलेट लेके वो एमआरएनए बना देता है। अगर आप गौर से देखें तो जो बॉटम स्टैंड को टेम्पलेट लेके एमआरएनए बनाएगा, उसका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होगा टॉप स्टैंड के जैसा। बॉटम स्टैंड को टेम्पलेट बनाएंगे, लेके बनाएंगे तो टॉप स्टैंड जैसा उसका सीक्वेंस होगा, स्वाय के टी की जगह यू होगा। किसमें? एमआरएनए में। एमआरएनए में टी की जगह यू होगा। तो हमेशा बॉटम स्टैंड जो है उसको टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए बॉटम स्टैंड को, और टॉप स्ट्रैंड उससे सिंथेसाइज होता है। इसका मतलब है जितने भी जीन के सीक्वेंसेस दिए गए हैं या कोडिंग सीक्वेंस कहीं पे भी लिखा हुआ 5 टू 3 प्राइम लिखा हुआ, टॉप स्ट्रैंड का लिखा हुआ है, और वही सीक्वेंस होगा एमआरएनए का, वही सीक्वेंस होगा एमआरएनए का। कौन सा सीक्वेंस जी? टॉप स्ट्रैंड का सीक्वेंस को बॉटम को लेके उसने तैयार करना है एमआरएनए को, तो टॉप स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। स्टेजेस इन ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन सी हो सकती है, हम इसको एम्प्लीफाई करके देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इसको हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज आता है जी। ये स्टार्ट साइट ऑन द टेम्पलेट स्टैंड, ये ग्रीन सा डॉट लगा हुआ है, ये स्टार्ट साइट है, और रेड डॉट लिखा हुआ ये स्टॉप साइट है। यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन होनी है, एमआरएनए की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। तो आरएनए पॉलीमरेज ये जो ब्राउन से कलर का है, ब्राउन से कलर का आता है, ये डीएनए स्ट्रैंड को बाइंड करता है। वहां से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल जनरेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल जनरेट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन बबल जनरेट होने के बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स आती हैं। ठीक है, ये डीऑक्सी डीएनटीपीज नहीं है, ये आरएनटीपीज हैं, ये आरएनटीपीज हैं। डीएनटीपीज डीएनए की रेप्लिकेशन में यूज होती हैं, आरएनटीपीज आरएनए सिंथेसिस में यूज होती हैं। तो आरएनटीपीज आएंगी, फिर उसके बाद ये एम जुड़ जुड़ के वो एमआरएनए आरएनए बनाने शुरू कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है दैट इज फ्रेशली, जैसे नेसेंट बेबी, अभी पैदा हुआ बेबी, ठीक है, नेसेंट नेसेंट फ्रेशली फ्रेशली प्रिपेयर्ड समथिंग इज कॉल्ड नेसेंट। ठीक है, तो नेसेंट एमआरएनए ये बन रहा है, क्योंकि ये मैच्योर एमआरएनए ये भी मुकम्मल बना, इसलिए इसको नेसेंट का नाम दिया है। फिर क्या हो रहा है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन, डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन ये दिखाया गया है, और ये बन बन के जिस तरह एक पतंग नहीं उड़ रही होती हवा में, इस तरह ये लहराने लग जाता है। कौन? नेसेंट आरएनए। अभी बाकी आरएनए बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ी हुई फॉर्म में भी है। आपको हाथ का निशान नजर आ रहा है, जो हाथ में हिला रहा हूं इस तरीके से, हाथ किसी को नजर आ रहा है यस ये हाथ सर। का? ओके, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, एलोंगेशन, ये एलोंगेशन हुई है, अब टर्मिनेशन होगी। टर्मिनेशन में रेड पे जाकर टर्मिनेशन होती है, यानी कि एमआरएनए को रिलीज कर दिया जाता है डीएनए स्ट्रैंड से। यहाँ से जुड़ा हुआ था ना जी, तो यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है जब टर्मिनेशन होती है, और ये खुद भी जो राइबोसोम है रिलीज हो जाता है, खुद भी राइबोसोम जो है ना ये रिलीज हो, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज होता है। राइबोसोम नहीं करना, राइबोसोम ट्रांसलेशन में होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है। हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे हम, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे जो आरएनए है ना, इसकी कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए की कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, डीएनए की कुछ स्पेसिफिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, आरएनए की लेकिन होती हैं। आरएनए की एक स्ट्रक्चर होती है हेयर पिन, ये हेयर पिन है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेम लूप स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए क्या होती है जी? ये लूप 1 स्टेम 1 बना हुआ है,
ये देखिए स्टेम 1 उस स्टेम जैसी शेप है, ये लूप 1 बना हुआ है, या लूप 2 स्टेम 2 बना हुआ है, उसको उन्होंने इस तरह ना आरएनए की बेसिस की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। बस ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए आरएनए को जब रन किया जाता है तो डीनेचुरेशन जेल यूज़ की जाती है ताकि आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाए तो और आरएनए की सेपरेशन हो सके मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे, मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे। अच्छा जी, अब आरएनए तो बन गया, आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हुई है, लेकिन वो नेसेंट आरएनए है, यानी वो नया-नया बना है, अब उसकी प्रोसेसिंग होनी है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, हम यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। तो जब आरएनए बन गई, आरएनए का सीक्वेंस है, ये दिखाया है वो आरएनए का बेस 1, बेस 2, बेस 1 काला ब्लैक कलर में दिखाई हुई है, बेस 2 दिखाई गई है। और ये क्या होता है कि 7 मिथाइल गुआनिलेट 7 मिथाइल गुआनिलेट जो है ना, फिर ये 5 टू 5 लिंक के साथ इसके 5 प्राइम पे आके एमआरएनए के जुड़ जाता है, इसको कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग। इसको कहते हैं 5 प्राइम मेथिलेटेड गैप। 5 प्राइम कैपिंग या 5 प्राइम मेथिलेटेड गैप इसको कहते हैं। ये जो इतना रीजन मैंने दिखाया है, ठीक है? 7 मिथाइल गुआनिलेट 7 मिथाइल गुआनिलेट जुड़ जाता है आके, ये फिरोजी कलर में दिखाया हुआ है, ये कहलाती है 5 प्राइम कैपिंग। अच्छा, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा, बॉन्ड लेवल पे देखा। अब हम जरा ना इसको जरा बिगर लेवल पे देख रहे हैं, जरा ताकि ओवरव्यू बनाने के लिए। ये एक जीन है, इसका नाम है बीटा ग्लोबिन जीनोमिक डीएनए। बीटा ग्लोबिन जीनोमिक डीएनए है ये, और यहाँ पे ये स्टार्ट साइट फॉर द आरएनए सिंथेसिस है, और ये पॉली ए साइट है, पॉली एडिनिलेशन साइट है। अच्छा, और ये क्या है जी? 1 है, ये 31 है। रेड रीजन जो है वो इंट्रॉनिक एक्सोनिक रीजन है, और फिरोजी रीजन जो है पहले की तरह वो इंट्रॉनिक रीजन है। एक्सॉन 1 2 3 3 एक्सॉन है इस जीन में, बीटा ग्लोबिन जीन में, और 2 इंट्रॉन्स हैं। फिरोजी कलर 2 नजर आ रहे हैं तो 2 इंट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले जनाब क्या होता है कि सबसे पहले जब एमआरएनए बन जाता है, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट वो इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है, ठीक है? 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है सबसे पहले। ये जो ग्रीन कलर दिखाया गया है, क्या है जी? ये 5 प्राइम कैपिंग है। ये वही 5 प्राइम कैपिंग जो पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं। 5 प्राइम कैपिंग हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है? क्लीवेज एंड एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। यहाँ से क्लीवेज होके सम यूटीआरस होते हैं। यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआरस का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन, जीन के ऊपर भी होते हैं और जीन के नीचे भी होते हैं। उनको नीचे डाउनस्ट्रीम वाले को काट के पॉली ए टेल लगा दिया थी। ए की एन मतलब एन टाइम्स ए हैज बीन एडिड, ठीक है? ए एडिनोसिन, राइट? एडिनोलेट bases have been added. Where? At the 3 prime. At the 3 prime of the pre-mRNA. pre-mRNA अभी मैच्योर नहीं हुआ मुकम्मल ना, रेडी नहीं है मैसेंजर आरएनए के तौर पे, pre-mRNA है। 5 प्राइम कैपिंग हुई, पॉली ए टेल हुई, और इसके बाद फोर्थ तौर पे क्या होता है कि स्प्लाइसिंग होती है। जो इंट्रॉन्स हैं जो इंट्रॉन्स हैं उनको स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है और सिर्फ एक्सॉन बच जाते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 से लेके 31 तक ये क्या है? ये इसके फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस है। 31 से आगे 32 जो है ना, देखिए ग्रीन रीजन सारा का सारा पास हो गया, 32 में जो ना अगले एक्सॉन पे जाके काउंट होना है। 32 से 105 तक है इसके क्या है जी? ये इसके कोडिंग सीक्वेंसेस हो सकते हैं, कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है? तो चूंकि ये डीएनए जीन है तो ये डेफिनेट न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। 105 106 यहाँ पे आना है, इंट्रॉनिक रीजन तो इन्वॉल्व ही नहीं होना कोडिंग सीक्वेंस में। तो 106 यहाँ जो ना 147 बेस पेयर लॉन्ग इसका कोडिंग सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है, ठीक है? तो आज हम प्रोटीन बनाते हैं, उसकी भी डोमेन्स बनाते हैं, तो वहां पे हम लेके मेंशन करते हैं कि ये अमीनो एसिड नंबर है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस का नंबर है। बेस पेयर लेंथ है ये किसकी? कोडिंग सीक्वेंस की। वो कहां पे पाई जाती है कोडिंग सीक्वेंस? सिर्फ एक्सॉन पे पाई जाती है। यहाँ पे फिर हम क्लोजर लुक एक देख रहे हैं, क्लोजर लुक देख रहे हैं बिल्कुल इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ठीक है? ट्रांसफर आरएनए के 2-3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है? ये उसकी एंट्री साइट है, ठीक है? ये उसकी एंट्री साइट है, ये उसकी लिविंग साइट है। ये लिविंग साइट में यहाँ पे निशान लगा देता हूँ आपके लिए, लिविंग साइट है। और यहाँ पे उसकी जो ना, यहाँ पे क्या होना है? बाइंडिंग है, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे होनी है। और ये जो है ऊपर ग्रीन नजर आ रहा है, AA1 AA2 AA3 AA4, अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड 4, ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है। हम यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकेरियोट की। आप और मैं यूकेरियोट्स हैं, आप और मैं यूकेरियोट्स हैं। तो जो ये ट्रांसफर आरएनए है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो इसमें
ये एंटीकोडॉन होता है, ठीक है। CAG ये जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जो है ना डीएनए के उसके बाइंड करेगा, क्या mRNA पे बाइंड करेगा, ठीक है। ये जो रेड दिखाया गया है ये mRNA का स्टैंड है, mRNA है। अब हम ट्रांसलेशन में आ चुके हैं, ट्रांसलेशन में जो है ट्रांसफर आरएनए काम करते हैं और ये अमीनो एसिड इसके साथ जुड़ा होता है, एक एंड पे ट्रांसफर आरएनए के और एक तरफ इसका एंटीकोडॉन होता है और ये एंटीकोडॉन जो है ये कोडॉन पे जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो जुड़ेंगे और क्या होगा, उसी वक्त जो पॉलीमरेज जो है ना पिछले अमीनो एसिड का नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना देगा, कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। और याद रखिएगा जो पहला अमीनो एसिड होता है ना उसका अमीन ग्रुप फ्री होता है और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है ना उसका क्या होता है, किसी भी प्रोटीन का, किसी भी पॉलीपेप्टाइड का जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिलिक एंड फ्री होता है। जिस तरह डीएनए को पढ़ा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसी तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को पढ़ा जाता है फ्रॉम एन टर्म टू सी टर्म, फ्रॉम एन टर्म टू सी टर्म। एन टर्म वही है जहां पे पहला अमीनो एसिड ऐड हुआ था ट्रांसलेशन के दौरान, सी टर्म वही है जहां पे लास्ट अमीनो एसिड हुआ था ट्रांसलेशन के दौरान। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना जेनेटिक कोड है, कोडॉन्स टू द अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो कि हमारे कोडिंग सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ये कोडॉन्स कहलाते हैं। एंटीकोडॉन जो है वो ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए इज कंटेनिंग द एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन इज समवेयर हियर शोन बाय रेड एंड द अमीनो एसिड। अच्छा जी, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर यू 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 होगा तो ये PHE दिस फिनाइलएलानाइन अमीनो एसिड विल बी ट्रांसलेटेड। अगर यू यू सी होगा फिर भी फिनाइलएलानाइन होगा, यू यू ए होगा ना अगर, ठीक है, ये पहला है, कौन है जी पहला, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड पोजीशन है, कहां पे है, mRNA पे, और थर्ड पोजीशन यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तीन पोजीशन दी गई हैं, अगर सी यू यू होगा तो ल्यूसीन होगा, सी यू जी होगा तो ये ल्यूसीन या मेथानिन होगा, ए ए यू होगा तो एस्पैराजीन होगा, ए यू होगा तो एस्पैराजीन होगा। पहला ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा जो पढ़ेंगे उसके आगे वाला कौन सा होगा, क्या होगा, कोडॉन होगा, ठीक है। ये कोडॉन्स दिए गए हैं, ये 64 कोडॉन्स हैं। अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए बनता कैसे है, ट्रांसफर आरएनए बनता कैसे, हम इसको भी एम्पलीफाई करेंगे, हम इसको एम्पलीफाई करके देखते हैं। तो ये बनता कैसे है, यहाँ पे अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन दिखाया गया है, जैसे ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, ये कौन है जी, ये ट्रांसफर आरएनए है, ये पूरा पूरा ट्रांसफर आरएनए है, और ये उसका क्या है जी, ये उसका टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर फिनाइलएलानाइन, ठीक है, ये उसका जी एंटीकोडॉन है, ठीक है, एंटीकोडॉन रीजन है जो कि कोडॉन रीजन पे बाइंड करता है तभी प्रोटीन बनती है। और ये कौन है, ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, लेकिन ये स्पेसिफिक है फिनाइलएलानाइन के लिए, स्पेसिफिक है ये इस अमीनो एसिड के लिए। सिंथेटेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि जोड़ते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, लेकिन एटीपी दरकार होती है उनको जोड़ने के लिए, और सिंथेसिस वो एंजाइम होते हैं वो भी जोड़ते हैं लेकिन वो एटीपी के बगैर ही जोड़ देते हैं। तो ये सिंथेटेज है, इसमें एनर्जी लगेगी, ये सिंथेटेज क्लास ऑफ एंजाइम है। अच्छा, तो हम देखते हैं जी इधर, तो ये क्या होगा, पहले स्टेप के तौर पर लिंकेज ऑफ द फिनाइलएलानाइन टू द ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक फॉर फिनाइलएलानाइन। तो इसमें एटीपी यूज हुई है देख रहे हैं, और एएमपी रिलीज हुआ और पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है, और यहाँ पे जो है ना फिनाइलएलानाइन जो है जुड़ गया है ट्रांसफर आरएनए के साथ। अगला स्टेप क्या है जी, अगले स्टेप के तौर पे ये क्या होगा, ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना अपने ये अपने कोडॉन पे जाकर जुड़ेगा mRNA के ऊपर, कोडॉन कहाँ पे है, mRNA के ऊपर है, जुड़ेगा, तो क्या होगा जी, तो ये ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसफर आरएनए बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, डीएनए डिस्कार्ड किया मैंने इसको, यहाँ पे एक वीडियो थी, ट्रांसक्रिप्शन की है शायद ये, तो डीएनए रेप्लिकेशन की है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सकते हैं।
बच्चों आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही, वीडियो आ रही है, आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है? जी सर। एक स्टूडेंट बता। ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखा आपने कि जो प्राइमर यूज होता है वो आरएनए बेस प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। और जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। एक स्ट्रैंड जो होता है पुराना और एक स्ट्रैंड नया जुड़ के न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव होती है, अद्धा नया अद्धा पुराना यूज होता है, सेमी कंजर्वेटिव इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाई गई है ये जो फिगर है ना, अच्छा जी, अब आपको ये बुक का चैप्टर नजर आ रहा है जी? बुक का चैप्टर आप सुन रहे हैं मुझे? सर ठीक है, तो ये वाली फिगर है, ये 5.2 ये आपने खुद तैयार करनी है, ठीक है। एक फिगर मैंने आपको दे दी, वीडियो में दिखा चुका हूं आपको ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की फिगर आपने खुद तैयार करनी है, इसकी वीडियो में दिखा चुका हूं आपको। तो जो मैं करूंगा आपके साथ वो ये मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं फिगर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये स्लाइड्स पे भी फिगर है लेकिन मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए। तो अब ये फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है जी, ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये ओल्ड फ्रैगमेंट जो डार्कर कलर में ये ब्लू सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये है, और जो नया फ्रैगमेंट बन रहा है वो 5 टू 3 प्राइम बन रहा है। आप जरूर याद रखिएगा, जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो 5 टू 3 प्राइम इट्स के अपने स्टैंड पे है, लेकिन जो टेम्परेट स्टैंड है वो जब जब आरएनए बन रहा है वो 3 टू 5 की तरफ रन हो रहा है, लेकिन इसको हम हमेशा कहेंगे 5 टू 3 प्राइम बिकॉज द पॉलीमरेज on its own strand is from 5 prime to 3 prime polymerase activity of the DNA। अच्छा, जो ही जब तक ये ठीक ठीक करता रहता है तो ये पॉलीमरेज जो है ना, ये वाली डोमेन है कह सकते हैं आप। तो ये पॉलीमरेज डोमेन है, ये है ना सारा का सारा जितना भी बनता जाएगा बनता जाएगा, क्या बनता जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड बनता जाएगा। जो ही कोई मिस्टेक होगी 3 प्राइम एंड पे तो क्या होगा, फौरी तौर पे रेप्लिकेशन रुक जाएगी,
रेप्लिकेशन रुक जाएगी, रेप्लिकेशन रुक जाएगी और इसको मोड़ के ना इसको एक्सोन्यूक्लियस डोमेन की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां पे 3 प्राइम पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे फादर मिस्टेक हुई है, इसको एक्सोन्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे मोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे इसको 3 to 5 प्राइम जो है ना वो इसकी बेसिस को उड़ा देगा जो जो रॉन्ग ऐड हुई हैं। तो एंडो जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इस डीएनए पॉलीमरेज की 5 to 3 प्राइम होती है, जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो 3 to 5 प्राइम होती है। ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म है जिसके तहत डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है लेकिन मिस्टेक नहीं होने देता, रेप्लिकेशन करता है लेकिन मिस्टेक नहीं होने देता। हम और देखते हैं और क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाई गई है फिगर जो मैंने आपको बुक से दिखा दी है। अच्छा, एक चीज इधर क्यों रह गई वो मैं ना बुक से ही दिखाता हूँ आपको। हम फुल स्लाइड करते हैं। एक फेमस मैकेनिज्म है डीएनए की, क्या है डीएनए के रिपेयर का। अब हुआ ये कि अचानक बाई चांस डीएनए को डैमेज पहुंचा, डीएनए की डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गई। एक वेरी फेमस मैकेनिज्म है ये प्रोटीन्स दीज आर वेरी फेमस इन द रिपेयरिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन द डीएनए। ये कुदरती मैकेनिज्म है, डीएनए पीके प्रोटीन इसका नाम है, KU80/KU70 इन दो प्रोटीन्स का नाम है। ये दोनों प्रोटीन्स दिखाई गई हैं, ये हेटेरोडाइमर की फॉर्म में है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स जुड़ के दोनों स्ट्रैंड जो यहाँ ब्रेक हुआ होता है डीएनए का वहां पे जुड़ जाते हैं और जो ब्रोकन स्ट्रैंड है उनको लाइगेज एंजाइम आके फिर जोड़ देता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपने देख लेना है, दिस इज वेरी फेमस। इसमें और भी बहुत सारी प्रोटीन है लेकिन यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में सिंपलिसिटी के लिए थोड़ी सी प्रोटीन दिखाई गई है और मेरा ख्याल कि इस चैप्टर में ये इतना काफी है, हमने काफी पढ़ लिया है। तो हम इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट जो है ना हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बुक से भी अगर कहें तो मैं दिखा देता हूँ। ये बुक से हमने सारा पढ़ा है, बुक से सारी फिगर्स हमने बुक से ली हैं, बुक से भी हम एक दफा अगर कहें तो पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बुक से चल रहा है, बुक से चल रहा है, ये बुक से हमने कुछ फिगर छोड़ दी हैं आपके लिए, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये सारी फिगर्स हमने ना बुक से की हैं, तो ये आपने इंशाल्लाह कर लेना है तैयार। ठीक है, ये डीएनए बी है, डीएनए ए है। ठीक है, ये मेजर ग्रुव है, ये माइनर ग्रुव है। ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये बेसिक फिगर थी। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आया? अगर नहीं भी समझ आया तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, आपने वरी नहीं करना। मैं अब स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी फिर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, खत्म कर दे मीटिंग। जी सर। यस सर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आने का।